Hello मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों. So in this lecture we are going to solve this question. So first we should read the question. The question, it's about journal entries. December 1st, 2022. Ajit started business with capital of 4 lakh. Next, he withdrew cash for business from the bank 2000. He purchased goods by making payment through bank. He sold goods for 16,000 and received payment through bank. He purchased furniture and paid by check 2500. He sold goods to Arvind. He purchased goods from Amrit. It's very normal question. So let's start. So here is our format. First date, then particular, then ledger folio, then amount debit, then amount credit. First entry is he Ajit started business with capital 4 lakh. So first entry, bank account debit to capital account. Narration, this is narration. Narration is very important in journal entries. Being Ajit started business with capital. In every entry, narration, जो ब्रैकेट के अंदर बीइंग करके लिखा है, इट्स अ नरेशन. एंड एक लाइन खींचना जरूरी है. सो 4 लाख. In and this too indicates credit side, and in debit side we already written debit. And this narration is important. जो being करके लिखा है, it's called narration. And after each entry we have to draw this line. Now second, he withdrew cash for business from the bank 2000. So in this entry what हो क्या रहा है कि अपने पास बैंक में जो पेमेंट, जो भी पैसा है, वो अपन कैश विड्रॉ कर रहे हैं बिजनेस यूज के लिए. तो अपना कैश कम हो रहा है 2000 रुपीज से बैंक में, लेकिन बिजनेस की बुक्स में वो 2000 से इंक्रीज हो रहा है. तो इसे अपन रिकॉर्ड कैसे करेंगे? वी रिकॉर्ड इट एज अ कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2000. तो कैश अपने पास बढ़ा, लेकिन बैंक में कैश कम हो गया. सो एवरीथिंग इज equals. Then our second entry, let's change the colors. Cash account debit to bank account, being withdraw cash for business use. Generation and ये line 2000 रुपीज. लेकिन अगर यहाँ पे होता he withdrew cash for business use, अगर यहाँ पर्सनल यूज होता तो वो ड्राइंग होती. We understand what is drawing in the last lecture. And next entry, he purchased goods by making payment through bank 15,000. उसने goods purchase करे. So I tell you, अपन goods purchase करने को अपन परचेज अकाउंट से लिखते हैं. डेबिट टू बैंक से उसने पेमेंट की, पेमेंट थ्रू बैंक. सो टू बैंक अकाउंट बीइंग परचेज गुड्स. अगर आप चाहो तो आप पूरा भी लिख सकते हो कि परचेज गुड्स बाय बैंक. हाउ मच? 15,000. Next entry, he sold goods for 16,000 and received payment through bank. उसने सेल करी
और बैंक में उसने पेमेंट रिसीव करी। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट being sold goods to sold goods. Yeah, it's enough. 16,000. Next entry. He purchased furniture and paid by check. Furniture is a fixed asset, so we record it as a furniture account. Furniture account debit to payment by check means bank. Payment उसने बैंक से की है. This check indicates bank. Payment made by bank. So we credit bank. Being purchased furniture by bank 2500. Next entry. He sold goods to Arvind. I tell you how to find credit cash transaction. In this transaction यहाँ पे सिर्फ पर्सन का नेम मेंशन है, कैश मेंशन नहीं है और क्रेडिट भी मेंशन नहीं है, लेकिन पर्सन का नेम मेंशन है और कैश भी मेंशन नहीं है, क्रेडिट भी मेंशन नहीं है, तो भी अज्यूम करेंगे कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. अंडरस्टूड? We discussed about this in the last lecture. He sold goods to Arvind. Yeah, Arvind. So Arvind, अगर कोई भी पर्सन है उसको उसके नेम में अपन अकाउंट नहीं लगाते, सो वी जस्ट राइट अरविंद डेबिट टू सेल्स अकाउंट. नरेशन में अपन ये लिख सकते हैं कि बीइंग सोल्ड गुड्स टू अरविंद on credit. This defines, narration is to define what is a transaction about. It's I think 16,000, 2,400. Sorry, I think it's 16,000. Understood? If any doubt you have, you just comment. I will try to solve your doubt in the next lecture. He purchased goods from Amrit. He purchased goods from Amrit. In this transaction also, no cash or credit involved, but there is a name of person. Means, sorry, this is not this. He purchased goods from Amrit. Person का name है. Means it is credit transaction. Amrit, David. Sorry. We are not selling. Purchase account debit to Amrit, because Amrit is a creditor for us. Being purchase goods from Amrit, 10,000 amount. In the next, he returned goods to Amrit 5,000. I told you कि अपन परचेज को क्रेडिट कब कब करते हैं. So this is the third case we discussed about, and here ये अमृत डेबिट होगा इसमें, क्योंकि अपना क्रेडिटर कम हो रहा है. 10,000 का अपना क्रेडिटर है और 500 के अपन ने उसको गुड्स वापस कर दिए, तो अपना क्रेडिटर कम ही हो रहा है ना, गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो अपन तो उसे टू परचेज रिटर्न अकाउंट. परचेज रिटर्न अकाउंट being return goods to Amrit worth rupees 500. And now he received
from Arvind 23 in full settlement. He received goods. Now have a format. Now it's our ninth. देखो समझो, अरविंद को अपन ने 2400 में गुड्स सोल्ड करी, लेकिन उसने सिर्फ अपन को 2300 रुपये वापस दिए फुल सेटलमेंट, मतलब 2300 से ज़्यादा उसने 1 रुपये भी नहीं दिया। 300 रुपये में इसका पूरा अकाउंट अपन को सेटल करना है। तो ये जो 100 रुपये का डिफरेंस आ रहा है अपने में, 2400 का गुड्स बेचा अपन ने उसे और 2300 रुपये उसने फुल सेटलमेंट में दिया। जो ये 100 रुपये है वो अपन ने उसे डिस्काउंट दे दिया। तो वी record is as a cash account debit, discount account debit to Arvind, being received cash from Arvind 2300 in full settlement. So now ये अरविंद अपने पास डेबिट था 2400 से, तो अपन इसको अपन क्रेडिट कर देंगे 2400 से एंड 2300 रुपये उसने कैश दिया अपन को। तो ये जो 100 रुपये डिफरेंस है वो अपना है, अपन ने उसको डिस्काउंट दिया, क्योंकि डिस्काउंट अपन ने दिया है तो अपने लिए वो एक्सपेंस है, लॉस है। अंडरस्टैंड? एंड नाउ सेकेंड एंट्री, ही विथड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज। आई discussed about this case about personal use, goods withdraw for personal use. So our entry goes like drawing account debit to purchase account, being withdraw goods for पर्सनल यूज। ड्राइंग एक अपने ड्राइंग मतलब अपन ने जो भी चीज़ बिजनेस में से अपने घर के यूज़ के लिए लिया है वो ड्राइंग है, और ड्राइंग अपन ने गुड्स जो परचेज करे थे उनमें से लिया है, लेकिन अपने पास जो बिजनेस में जो गुड्स हैं वो तो कम हो गए ना, तो दैट्स व्हाई वी क्रेडिट परचेज एंड डेबिट ड्राइंग। डेबिट जो ड्राइंग की है अपन ने वो कैपिटल से माइनस हो जाती है। सो हाउ मच द वैल्यू? 1000 रुपीज। एंड नाउ ही विथड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। उसने फिर से बिजनेस में से 2000 रुपये कैश विथड्रॉ करे परचेज पर्सनल यूज के लिए। सो अगेन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश कम हो गया और ड्राइंग फिर से बढ़ गई। बीइंग, ये अपना नरेशन, कैश फॉर पर्सनल यूज वर्थ 2000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, he paid telephone charges 110। टेलीफोन चार्जेस इज एक्सपेंस, और जब एक्सपेंस बढ़ता है तो अपन उसे डेबिट करते हैं। सो हियर टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, is there any cash or bank mention? No mention, so we assume it by bank। you can कोई भी आप कैश भी कर सकते हो एज्यूम और बैंक भी कर सकते हो, तो इन माई केस आई एज्यूम बैंक। बीइंग एक्सपेंस पेड बाय बैंक 110।
नेक्स्ट, अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट। अपन ने अमृत से गुड्स परचेज करे थे 10,000 के, और अपन उसे फुल सेटलमेंट में 90450 रुपीज़ दे रहे हैं, लेकिन अपन ने उसे गुड्स रिटर्न करे थे 500 रुपीज़ की। सो इसकी वैल्यू हुई 10,000 के। अपन ने गुड्स परचेज करी, 500 रुपये अपन ने उसको रिटर्न कर दिए, गुड्स रिटर्न। अब उसके अपने पास देने के बचे हैं 9500, बट वी आर पेइंग 9,500 450 रुपीज़। तो ये जो 550 रुपीज़ का डिफरेंस है, ये अपने लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। अंडरस्टैंड? सो हियर इज आवर नेक्स्ट एंट्री। अमृत, या अमृत इज रिसीवर, एंड उसे राउंड ऑफ करना है अपन। अमृत डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। आई डिस्कस्ड अबाउट कि अपन क्रेडिटर है उसको पेमेंट कर रहे हैं, और अगर लायबिलिटी कम होती है तो अपन उसे डेबिट करते हैं, लेकिन अपना जो कैश जा रहा है अपने पास से तो एसेट्स कम हो रहा है तो अपन उसे क्रेडिट करते हैं। लेकिन दिस जो डिस्काउंट अपन को रिसीव हुआ है, दिस इज अ टाइप ऑफ इनकम फॉर अस, सो अपन इसे क्रेडिट कर रहे हैं, इनकम और क्रेडिट। अंडरस्टैंड? नाउ बीइंग paid cash to Amrit 9459500, एंड यहाँ पे अपन ने 9,450 रुपये दिए और 50 रुपये डिस्काउंट रिसीव किया। सो दिस हो गया। पेड स्टेशनरी रेंट एंड सैलरी टू स्टाफ फ्रॉम बैंक। नाउ 14th entry, stationery account डेबिट, और सैलरी अकाउंट डेबिट, और आई थिंक इट्स रेंट account debit, because all expenses are debit to bank. Being paid all expenses through bank. Stationery rupees 200, rent 5,000, and staff salary 2,000. Staff salary 2,000, rent 5,000, and stationery 200. So this total 7,200 we paid by bank. And our last entry is goods distributed by way of free sample. We also discussed this in last lecture. So now our last entry will be like all expenses. So this is our fifth. देखो, क्रेडिट तो पता है अपन को कि परचेज क्रेडिट करेंगे अपन, क्यों? क्योंकि गुड्स कम हो रहे हैं। एंड डेबिट क्या करना है अपन को? डेबिट अपन करेंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल। फ्री सैंपल एक तरह का एडवर्टाइजमेंट है, सो वी रिकॉर्ड इट एज अ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, बीइंग गुड्स distributed as free sample.
how much cost? 2000. So this is our advertisement expense 2000, and 2000 we पर अपन ने परचेज कम कर दिया 2000 रुपीज. So this is our question. If you have any doubt, comment below and I try to solve your in the next lecture. So this is this question, and now understand a new concept. So here are advantages of general. As transactions are recorded in chronological order, and one can get complete information about the business transaction on timely basis. So एक ये एडवांटेज है अपने पास कि अपन डेट वाइज एंट्रीज करते हैं जनरल में. So we get information about each and every transactions we do. Next, entries recorded in the journal are supported by a note termed as narration. ये अपन ने लिखा ना narration. So it is also helpful for us to define what transaction is. अगर कुछ समझ नहीं आ रहा अपन को एंट्री देख के, तो we can understand by narration कि transaction किस basis पे है, which is a precise explanation of transaction for proper understanding of entry. Understand? मैंने बताया था कि नरेशन लिखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ट्रांजैक्शन को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता है. One can know about the transaction through these narrations. Journal forms the basis for posting the entries in ledger and reduces the chances of error. In the next lectures, in upcoming lectures, we studied ledger. What is ledger? So it is a general form the basis for posting entries. It's the very we studied this about posting the entries in ledger. So now here is a small concept. I don't know it's in your exam, in your syllabus. I don't know, but it's my duty to define you what is, tell you what is goods and service tax. Uh, now मोदी जी ने सिर्फ जीएसटी गुड्स पर 5 और 18% कर दिया है फ्रॉम 20 Feb 22. So it's become important to study. GST is levied on supply or manufacture or sale of goods or provision of services. So mainly in our questions we calculate GST on sales of goods or purchase of goods. Understand? And this is under GST tax is levied only on the value added at each level. ये बताऊंगा मैं. There is no tax. This is the benefits of GST. You can read here. And there are types of GST taxes under GST. So mainly we discuss about 1 to 3 taxes. GST is central GST जो यूनियन गवर्नमेंट लगाती है. स्टेट GST जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है. एंड UT GST means GST which is levied by union territories with legislature assemblies. जिनका खुद का एक असेंबली है, लाइक दिल्ली or Jammu and Kashmir and Pondicherry. These are 3 union territories which has खुद की जिसके पास लेजिस्लेचर असेंबली है, वो 3 यूनियन टेरिटरीज हैं. उन पे यूटी जीएसटी लगता है. विच सिंपली वी उन यूनियन टेरिटरीज को वी स्टेट के रूप में अपन देखते हैं. अंडरस्टैंड? सॉरी एसजीएसटी वो जो 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास लेजिस्लेचर है, कुछ एसजीएसटी लगाती हैं. जिनके पास लेजिस्लेचर नहीं है वो यूटीजीएसटी लगाती हैं. और ये सब इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगती हैं ये तीनों. और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी ये इंटर स्टेट सप्लाई पे लगती है. मतलब आप कह रहे होगे कि सर ये क्या है इंट्रा और इंटर स्टेट सप्लाई. सो वी विल डिस्कस हियर इंट्रा एंड इंटर स्टेट सप्लाई. इंट्रा सप्लाई विथ इन स्टेट मीन्स बिजनेस है एक, और क्लॉथ्स का बिजनेस है मेरा भोपाल में, लेकिन मैंने परचेज गुड्स करे फ्रॉम इंदौर. सो इट इज इंट्रा स्टेट बिकॉज आई परचेज और सेल्स मैंने सेम ही स्टेट से करी हैं. अंडरस्टैंड? सप्लाई विद इन द सेम स्टेट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई.
मेरा बिजनेस है क्लॉथ्स का भोपाल में, लेकिन मैंने गुड्स परचेज करे फ्रॉम दिल्ली। सो यहाँ पे मेरा ये इंटर स्टेट सप्लाई है, मतलब सप्लाई इन टू स्टेट्स, टू डिफरेंट स्टेट्स। और अगर मैं बोलूँ कि मैंने मुंबई से मेरे कपड़े मंगाए, मैंने अभी ये अपना आईपैड परचेज करा फ्रॉम ऑनलाइन एप्पल स्टोर, बट इट कम्स फ्रॉम मुंबई। सो मुंबई से मेरा ये आईपैड आया भोपाल। So this is different states. This is Maharashtra and this is MP. So in this transaction मैंने पे की IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसे अपन इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन टू डिफरेंट स्टेट्स के साथ हुआ है उसे अपन इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। एंड देयर आर और एग्जांपल्स, बिजनेस है इंदौर में, सेल्स करी नागपुर में, सो इट इज इंटर स्टेट सप्लाई। बिजनेस है मेरा मुंबई में, सेल करी मैंने जयपुर में, सो इट इज़ इंटर स्टेट सप्लाई। मेरा बिजनेस है जिसमें मैंने परचेज करी इन द स्टेट और सेल करी मैंने आउट ऑफ द स्टेट, सो इट इज़ ऑल्सो इंटर स्टेट सप्लाई। इफ इंटर स्टेट सप्लाई ट्रांजेक्शन है तो जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा और एसजीएसटी भी लगेगा। अगर यूटीजीएसटी लगना होगा तो क्वेश्चन बता देगा कि कौन सा जीएसटी लगना है। नॉर्मली वी कैलकुलेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन मीन्स दो स्टेट्स के, दो डिफरेंट स्टेट्स में ट्रांजेक्शन परचेज सेल है, सप्लाई हुआ है दो अलग अलग स्टेट में, सो इंटर स्टेट सप्लाई, जिसमें सिर्फ आईजीएसटी कैलकुलेट होगा। सो देयर इज एग्जांपल जीएसटी इन जनरल एंट्रीज। परचेज में अपन चार्ज करते हैं इनपुट जीएसटी, सेल्स में अपन चार्ज करते हैं आउटपुट जीएसटी। सो परचेज गुड्स 50,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच, मतलब जो सीजीएसटी है वो कैलकुलेट होगी 9% से और एसजीएसटी है वो भी 9% से कैलकुलेट होगी। सो हियर इज आवर एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट और टू वेंडर कैश अकाउंट। सो परचेज अपन ने करी है 50,000 से, लेकिन इसमें लिखा है परचेज के टाइम पे इनपुट जीएसटी लगाते हैं अपन। सो देयर इज टू मोर एंट्रीज इन विच इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। सो अपन 50,000 पे 9% सीजीएसटी कैलकुलेट करेंगे एंड इसी 50,000 पे अपन 9% अलग से एसजीएसटी कैलकुलेट करेंगे, तो इनका अमाउंट आएगा 4500 इन सीजीएसटी और 4500 इन एसजीएसटी। इन सब का टोटल करके अपन टू वेंडर कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। सो दिस इज जीएसटी। इट्स इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड जीएसटी for as per your exam. If it is not in your syllabus, it's good for you. If it is if it is in your syllabus, so I tell you about basics and it is enough for you to calculate about your GST if it's come in your questions. So this is for today. I will come up with the next lectures in tomorrow. So hope you are doing well. Thank you for today. Have a nice day.